Hello, maths champions. Welcome back to Smart Maths with Surpi. Today, we are going to learn how to express numbers in exponential form. This is part 2 of the solved questions. Part 1 में हमने देखा था how to fold a paper and आज हम देखेंगे कि how to express numbers in exponential form. And trust me, this is going to make your calculation so much easier. Ready? Let's go. Question is from page number 22 to 23. It is figure it out. You have to express the following in exponent form. अब क्या है? The first point is 6 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका बेस क्या है? 6 है और इसकी एक्सपोनेंट क्या है कि कितनी बार 6 रिपीट हो रहा है. So 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 times. So I'll write it as 6 की पावर 4. Next is y into y. So y is the base और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2. So it is y square. b is the base and it is repeating 1 2 3 4 times, so it is b की power 4. The next the fourth one is says 5 into 5 7 into 7 into 7. अब इसमें मेरे पास दो टर्म्स है, one is 5 and one is 7, बट ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 5 2 times रिपीट हो रहा है और 7 3 times रिपीट हो रहा है. Next comes the fifth one, 2 into a. 2 is repeated 2 times and a is also repeated 2 times, so I'll write it as 2 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ वन. अगर हम देखेंगे इसमें ए भी है, सी भी है और डी भी है. सो आई राइट इट एज ए इंटू सी इंटू डी. अब ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. सी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स. और डी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम. तो दिस इज हाउ वी राइट इट इन एक्सपोनेंट फॉर्म. So students, our next question is express each of the following as a product of powers of their prime factors in exponent form. अब क्या करना है? हमें 1 नंबर दे रखा है like 648. इसकी मेरे को पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी और जो भी मेरे फैक्टर्स निकलेंगे उनको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लूंगी. So let's see the first one. 648. 2 से करती हूँ. 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, again with the 2, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, again with the 2, 2 8 जा, 2 1 जा, with the 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, with the 3, 3 9 जा 27, 3 3 3 and 1. अब मैं क्या करूंगी? 2 and 3 लिख लूंगी. अगर आप देख रहे हैं तो 2 is repeated how many times? 3 times. तो मैं 2 raised to the power 3 लिख दूंगी and 3 is repeated 4 times. So I can write 648 as an exponent form as 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 4. Next देख लेते हैं. Next is 405. अब मैं 405 के अगर मैं फैक्टर्स लूंगी यहाँ तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 3 and a 1. तब ये क्या है? 5 and 3 are only coming. So I'll write 5 into 3. अब 5 is written only once, so 5 की power 1 and 3 is repeated how many times? 4 times. So 3 की power 4. So my answer becomes as 5 into 3 raised to the power 4. Our next part is 540. अब 540 को मैं क्या करूंगी? वन साइड पे मैं इसके फैक्टर्स ले लूंगी. 2 2 जा 2 7 जा एंड 0, 3 9 जा 27, 3 3 0, 3 1 0 with the 2 5 5 1. अब सबसे पहले मेरे को देखना है कि क्या क्या नंबर्स हैं. 2 है, 3 है एंड 5 है. But I'll see how many times it is repeating. 2 is repeating 2 times, so it is 2 square. 3 is repeating 3 times, so 3 cube. And 5 is written only once, so it is 5 की power 1. This is how we write powers in exponent forms. कि हमें देखना है कि कितनी बार repeat हो रहा है. The next one is 3600. अब 3600 के हम factors कर लेते हैं यहाँ. 3600, 3 1 जा 3 2 जा 0 0, 3 4 जा 12 0 0, 2 200, then with 100, then with 2,
2 5s are 10 and a 0, then with a 2, so this becomes 2 2s are 4, 2 5s are 10, फिर with a 5 and 1. तो मेरे इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 3 and 5. ऑलवेज राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फैक्टर्स जो हो। अब ऐसे मत लिख लेना 5 3 2, दैट डजंट लुक गुड, राइट? तो हमें हमेशा जब भी हम फैक्टर्स लिखते हैं तो हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। 2 3 5। सो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? वील सी दैट 2 is repeating 1 2 3 and 4 times. So I'll write it as 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 2, 3 square, and 5 is repeated also twice. So I'll write 3600 as 2 की power 4 into 3 square into 5 square. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये है, अभी हमें ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा है एंड दे आर आस्किंग अस कि हमें इसको कैसे लिखना है इन न्यूमेरिकल वैल्यू। जो अभी हमने क्वेश्चन करा था उसी का उल्टा करना है। अब द फर्स्ट पार्ट इज 2 into 10 raised to the power 3। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 and 10 raised to the power 3 I can write it as 10 into 10 into 10. So this becomes as 2 into 10 कितनी बार रिपीट है? 3 times, तो मतलब 3 zeros, 1 2 3. So my answer becomes as 2000. Okay. The next one is 7 square 2 cube. So 7 into 7 and 2 into 2 into 2. So 7 7 is 49 and 2 cube is 8. If you multiply, this will be 392. The next part is 3 into 4 की power 4. 1 2 3 and a 4. So मेरे को पता है 3 4 4 जा कितना हो जाता है? 16 and 4 4 जा 16 हो जाता है। If you multiply all this, this will be 768. Now it is -3 का होल स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नेगेटिव साइन भी है। तो -3 का होल स्क्वायर मीन्स -3 into -3, और -5 कैसे लिख सकती हूँ? -5 into -5। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 into 3 तो 9 हो जाएगा, करेक्ट? और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे एंड 5 5 जा 25 और नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। सो माई आंसर विल बी अ पॉजिटिव वन, दैट इज 25 into 9, 225. 225. अब ये है 3 into 3 into 10 into 10 into 10 into 10। मुझे तो 10 मल्टीप्लाई करने में बहुत मजा आता है। 3 3 जा 9 एंड 10 कितनी बार है? 4 टाइम्स। तो 4 1 2 3 4। सो दिस बिकम्स एज 9 90,000। 1 2 3 90,000। अब है -2 की पावर 5, मतलब -2 को मैं 5 बार क्या करूंगी? मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 एंड 5। और -10 को मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी। सो अगर मैं -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल बी -32। और 10 को अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 1 2 3 4 5 6 जीरोस लिख देती हूँ। तो माय आंसर विल बी -32 विद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। नाउ व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट चीज? अगर कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है, करेक्ट? इवन पावर है, एनी इवन पावर, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर जो पावर है दैट इज व्हाट? ऑड नंबर, 3 5, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना? On page number 24, it says 3 की power 7 can also be written as 3 square into 3 raised to the power 5. Can you reason out why? अब 3 raised to the power 7 दे रखा है, वो बोल रहे हैं इसको क्या हम 3 raised to the power 2 और 3 raised to the power 5 लिख सकते हैं?
तो हम देखते हैं हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब 3 रेज टू द पावर 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको मैं 7 टाइम्स लिख दूंगी बिकॉज 3 इज द बेस। 2 4 5 6 2 4 5 6 7 7 टाइम्स लिख लिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इनको ब्रैकेट्स में बना दिया, एक 3 की पावर मैंने 2 लिख दी और एक 3 की पावर 5 लिख दी। तो इज इट करेक्ट? आई कैन राइट इट लाइक दिस, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 5. So yes, I can write 3 raised to the power 7 as 3 raised to the power 3, sorry, 3 raised to the power 2 and 3 raised to the power 5. Our next question is n की power a into n की power b will give me n की power a plus b, where a and b are the counting numbers. तो ये अगर आप देखोगे ये हमारा रूल है, जब भी मल्टीप्लिकेशन बीच में रहता है सो पावर्स गेट एड अप व्हेन वी हैव द सेम बेस. तो यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन हमें क्या करना है? द फर्स्ट पार्ट इज 2 की पावर 9, इसको हमें कैलकुलेटिव वे में लिखना है. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 9, दिस मीन्स 2 को मैं 9 टाइम्स लिख लूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब इसको इजी वे में सॉल्व कैसे करना है? यू कैन मेक पेयरिंग्स एंड देन मल्टीप्लाई. तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेट्स से 3 3 की पेयरिंग कर देती हूँ, 3 3 एंड 3. अब मैंने 3 3 की क्यों पेयरिंग करी है? क्योंकि 9 है, राइट? तो मैंने 3 3 की क्यों पेयरिंग करी है? क्योंकि ये 9 डिजिट्स हैं. So it will be 2 की power 3 into 2 की power 3 into 2 की power 3. So I know 2 cube is 8, 2 cube is 8 and 2 cube is 8. So 8 8 is 64 and 64 into 8 is, or you can say 8 cube is 512. So this is how you can do it easily by pairing it up. The next one is 5 की power 7. तो मैं 5 को 7 times लिख लूंगी. 1 2 3 4 5 6 and 7. फिर से पेयरिंग कर लूंगी. आप 3 की पेयरिंग भी कर सकते हो, आप 2 की पेयरिंग भी कर सकते हो. तो 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब एंड इंटू 5. तो मेरे को पता है 5, अच्छा 5 स्क्वायर भी कर सकते हो एज एज पर योर कन्वीनियंस. तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So 5 cube is 125 into 125 into 5. So if you multiply, this will be 7. So if you multiply, this will be 78,125. So let's go to the next one. Okay, it is 4 की पावर 6 है. तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 4 की पावर 6 है तो मैं 4 को कितने टाइम? 6 टाइम्स लिख लूंगी. 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें मैं क्या करूंगी? पेयरिंग कर लूंगी. या तो 2 2 की पेयरिंग कर लो या 3 3 की पेयरिंग कर लो. इट्स अप टू यू. जो भी आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर कर लो और क्यूब याद है तो क्यूब कर लो. तो 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर. तो इट विल बी 16 इंटू 16 इंटू 16. और 16 क्यूब कितना होता है? 4096. So our next question is, write the following expression as a power of a power in at least 2 different ways. तो हमारे पास क्वेश्चन है 8 की पावर 6, 7 की पावर 15, 9 की पावर 14 एंड 5 की पावर 8. तो देख लेते हैं हम 8 की पावर 6 कैसे करेंगे. बेस सेम रहेगा, बस पावर्स को मेरे को पावर्स की पावर्स लिखनी है. तो 2 की पावर 6 विल बी 8 की पावर 6 विल बी, माय मिस्टेक, तो इट विल बी 8 स्क्वायर की पावर 3. और इसी को अगर मैं डिफरेंट वे में लिखना है तो 3 को अंदर लिख लूंगी और 2 को बाहर लिख लूंगी बिकॉज 3 2 इज 6. अब पावर की पावर क्या होती है? जैसे a की पावर m की पावर m n. तो m की पावर क्या है? n. और m खुद ही एक पावर है, पावर की पावर. अब है 7 की पावर 15. तो पहले मैं बेस लिख लूंगी, उसके बाद जो भी मेरे पास पावर है लाइक 15. सो मेरे को मल्टीप्लाई करने हैं 2 नंबर्स कि उसका आंसर क्या आ जाए? 15. जैसे 5 3 is 15. तो 3 एंड 5 विल बी आउटसाइड. तो ये हो गई पावर की पावर और इसी को मैं अंदर लिख लूंगी. तो दिस बिकम्स 7 की पावर 5 का होल 3. अब 14 है तो 7 2 is 14. तो 9 स्क्वायर की पावर 7 एंड 9 7 की पावर स्क्वायर. अब 5 की पावर 8 है तो 5 इज द बेस और मुझे पता है 2 4 जा और 4 2 जा, इट इज 8. So this is how you can do it easily. So remember friends, there are always more than one way to solve a problem in mathematics. Keep exploring, keep learning. Like this video if you learned something new. Share with your friends and subscribe to Smart Maths with Surbhi. See you in the next video where we will be discussing about the magical pond. Thank you. Bye-bye.